Start, Poonam. Yes. Yesterday we have some half part of the endocrine system. Just we'll revise and we'll go further. Okay. These are the main endocrine glands. Which are those? Pituitary gland, thyroid gland, pancreas, adrenal gland, testes, and ovaries. Okay. And that main gland is pituitary because it secretes many hormones. We have seen this chart yesterday. Okay, pituitary gland. In that also they have divided posterior and anterior part. In posterior part, there are two hormones. It releases oxytocin and antidiuretic hormone, that is ADH. And anterior one secretes 6 hormones. Those are growth hormone, prolactin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, that is ACTH. Okay. In short, we have seen the functions of these hormones, like how oxytocin works, like it secretes the milk or produce the milk, and antidiuretic hormone is related to urine and kidney. It stimulates it. Then anterior pituitary gland, what it does, inside the name only, the function is there. Growth hormone, it's mainly for the growth. Then prolactin, it's produce the milk in breast and mammary gland maturation. And follicle stimulating hormone, that is FSH, and LH, that is luteinizing hormone. These both are for the cell maturation in male and female both, like in testes and ovaries. It stimulates the production of cells or stimulates it. Then thyroid stimulating hormone, inside the name only, it has the function, that is it stimulates the thyroid. Then adrenocorticotropic, it related to mainly stress and activates the adrenaline gland. Then we have seen the second gland, that is thyroid gland. Okay, it secretes 3 hormones, that is T3, triiodothyroid, T4, that is thyroxine, and then calcitonin. Okay. These mainly thyroid gland is for metabolism, heart rate, and development, everything, all almost all functions carries these thyroid gland hormones. Then third one, we have seen that parathyroid gland. Parathyroid gland is behind small glands behind the thyroid gland, and itself it secretes like parathyroid hormone only, and it's related to calcium metabolism. If it is less, calcium level decreases. If it is high, calcium level increases in the blood or bone density. Then we are going to see today the pancreas and adrenaline glands, and this is going to cover in reproductive system. So today we are going to see this pancreas and adrenaline gland. So we'll shift there. Okay, here is the pancreas. Okay, you have seen this image before in the digestive system, and this is the inside structure of the cell inside the pancreas. You can see here many cells and groups are there, like beta cell and alpha cell and beta cells. And here also inside this, other theta cells and other cells secretes enzymes which directly helps into digestive system, which secretes into duodenal part. Okay, bile duct and this pancreatic duct together connects and secretes enzymes and digestive juices into the duodenum, that is exocrine part. Okay, and the endocrine part, these cells in between, again in that they have 2 types of cells, alpha and beta. In that, alpha cells secretes glucagon, and beta cells secretes insulin. Okay, and this function of these hormones like reciprocate to each other, like one increases blood sugar and one decreases the blood sugar. Okay, how exactly it works, we'll see. Here, this is the pancreas and cells in the pancreas. Okay, it's called as islets of Langerhans.
in that beta cells. Okay, beta cells releases which hormone? Insulin. And this leads to what happen exactly? Insulin, what it does? Blood sugar decreases. Okay, it's act like lock and key. Insulin acts as a key to the sugar molecule carrying key. Okay, what exactly it does? It attaches to the sugar molecule or molecule, and it carries to cells from the blood. Okay, it is inside the blood only. Insulin attaches to the sugar molecule and lock itself, and it carries to the blood. Okay, so when sugar molecule pass to the cell, automatically blood sugar level comes down. Okay, so insulin mainly acts to reduce the blood sugar level. And then alpha cell, which secretes glucagon, which releases glucagon, and this is function of glucagon is reciprocated to the insulin, like its opposite function. What it leads to? Blood sugar increases. What it does exactly? It goes into like lipid tissue, and it breaks down into sugar molecule to utilize for the cell metabolism. So it increases the blood sugar level inside the blood. Okay, in basic level, I think you have clear idea of this. Okay, you can see it here. Insulin, what exactly it does? On carbohydrate metabolism, insulin increases the glucose entry into most of the body cells. It produces hypoglycemia. यहाँ पे क्या हो जाता है? लॉक की तरह जब एक्ट करता है, एक सेल को पकड़ के ग्लूकोज मोलेक्यूल को पकड़ के लॉक करके सेल्स की तरफ लेके जाएगा, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया. हाइपो यानी लेवल, हाइपर यानी ज्यादा, तो हाइपोग्लाइसेमिया. ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बोलते हैं, शुगर लेवल का जो इंडेक्स रहता है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह बोलते हैं. तो हाइपोग्लाइसेमिक यानी ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया है. ओके, यूजुअली पेशेंट जो डायबिटीज वाले पेशेंट रहते हैं, उनका शुगर ब्लड, अगर शुगर आप चेक करोगे तो उनका शुगर में ब्लड में शुगर ज्यादा रहता है, फिर भी वो हाइपोग्लाइसेमिक में जाते हैं. जैसे कि वो एकदम से चक्कर आना, हार्ट बीट ज्यादा होना, पसीना आना, क्योंकि उनके सेल वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वहां तक शुगर नहीं पहुंच पा रहा है. लेकिन आप जब देखोगे तो ब्लड में शुगर रहेगा. ओके, सो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका ये है सिस्टम, हाइपोग्लाइसेमिक में जाना. On protein metabolism, insulin promotes amino acid uptake. It decreases protein breakdown. It promotes protein synthesis, especially in muscles. Muscles में क्या करेगा? ये protein synthesis करेगा. Okay. This acts on carbohydrate. How exactly? Increases the glucose entry. And protein में क्या करेगा ये? Protein का breakdown बढ़ाएगा. Okay. At the level of metabolism of carbohydrate and protein metabolism. अगर ये कम ज्यादा हो गया, if it is secretes less or higher, what exactly happens? Diseases like diabetes mellitus, which is commonly known as only diabetes, okay, or DM, okay, capital DM. यहाँ पे क्या हो जाता है? It is a group of metabolic disease, means it's group of, एक ही बस चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें इसमें अफेक्ट करती. जैसे किडनी अफेक्ट हो रहा है, पैनक्रियाज अफेक्ट हो रहा है, हार्ट का फंक्शन थोड़ा थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, फिर बाकी सारे थोड़े थोड़े अफेक्ट होती है, ऑल सिस्टम पे इफेक्ट हो जाता है. तो एक मेटाबॉलिक डिसीजेस है, नॉट पर्टिकुलर ये ऐसे ही इसमें होता है. ओके, इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. इसमें क्या हो जाता है? बहुत टाइम तक पूरा ब्लड शुगर अपना हाई हो जाता है. जैसे कि हमने अभी गुलाब जामुन खाया या शुगर खाया तो अपना शुगर बढ़ेगा. ओके, तो ये ऐसे काउंट नहीं करते. एटलीस्ट आपको मोर देन 3 months 6 months आप कंटिन्यूस डेली चेक करोगे तो आपका ब्लड शुगर हाई आ रहा है, देन ओनली वी कैन कंसिडर इट डायबिटीज मेलाइटिस और ओनली वी कैन से डायबिटीज. ओके, दिस हाई ब्लड शुगर प्रोड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ frequent urination, increased thirst, increased hunger.
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों? क्योंकि ब्लड में शुगर ज्यादा है तो वी हैव टू फिल्टर इट आउट। सो वो किडनी काम करने लगता है कि ब्लड में शुगर ज्यादा है, क्योंकि वो सेल को नहीं पहुंचा पा रहा है, वो ब्लड में ही रह जाता है शुगर। सो ब्लड वाला जो ग्लूकोज है उसको फ्रिक्वेंटली वॉश आउट करना है या फिल्टर करना है। देन इंक्रीज द थर्स्ट, क्योंकि इतनी बार यूरिनेशन करके या फिल्टर आउट करके जो एक वाटर लेवल बॉडी में रहता है वो कम हो जाता है। सो वी नीड मोर वाटर, सो वी थर्स्ट ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड। देन इंक्रीज द हंगर। क्यों इंक्रीज हंगर? इतना खाते हैं, ग्लूकोज ऑलरेडी मीन्स अगर शुगर चेक करोगे तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा ही आ रहा है, फिर भी हंगर उनको आ जाता है या हंग्री हो जाते वो लोग, क्योंकि उनके सेल्स को पता नहीं है ना, सेल्स तक वो शुगर मोलेक्यूल नहीं पहुंच पा रहा है या ग्लूकोज मोलेक्यूल नहीं पहुंच पा रहा है। तो सेल को लगता है कि हमें अभी कुछ मिला नहीं है, अभी खाना है हमें। तो वो मैसेज पहुंचाता है कि बाबा हमें अभी खाना है, और क्योंकि मेरे पास तो अभी शुगर मोलेक्यूल नहीं आया है, मैं कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करूं। सो वो फिर से एनर्जी प्रोड्यूस मीन्स मैकेनिज्म ब्रेन को ये करके एक्टिवेशन करता है कि हंगर, क्योंकि हमें और खाना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, और खाएंगे तो फिर इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, फिर वो मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा तो फिर और शुगर डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाएगा। मीन्स इस साइकिल में पूरे फंस जाते ये लोग, इससे बाहर नहीं आ पाते। ओके, सो इसके लिए बेस्ट है कि आपका डाइट कंट्रोल करना है। अगर जब तक डाइट नहीं कंट्रोल करते तब तक ये फिर से सेल एक्टिवेट नहीं हो जाते। देन है ग्लूकागॉन। यहाँ पे हमने देखा कि इंसुलिन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, शुगर मोलिक्यूल्स या सॉरी ग्लूकोज मोलिक्यूल जो ब्लड में रहते हैं उसको कैच करेगा एंड सेल्स को पहुंचाएगा, बस इतना ही काम कर रहा है इंसुलिन, बाकी कुछ नहीं है। देन ग्लूकागॉन हम देखेंगे एग्जैक्टली इसका क्या है। ग्लूकागॉन act mostly on the liver and adipose tissue where it antagonize the action of insulin, means ये इंसुलिन के उल्टा काम करता है। और कहाँ पे मोस्टली वर्क करता है ये, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू यानी फैट टिश्यूज। ओके, इस पे काम करता है। जो फैट टिश्यू और लिवर पे जो फैट टिश्यू रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करके मीन्स फैट मोलेक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा और कार्बोहाइड्रेट में उसको फिर से कन्वर्ट कर देगा। और ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फिर से वो कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये भी रेसिप्रोकट है पूरा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाओगे तो भी कैसे वजन बढ़ता है, फैट तो नहीं खा रहे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फिर से जाके वो फैट में कन्वर्ट होके बैठता है अपने बॉडी में। अगर फिर से उसको यूटिलाइज में लाना है तो फैट मोलेक्यूल डिवाइड होंगे और कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे, तब भी वो फिर कार्बोहाइड्रेट से फिर से ग्लूकोज मोलेक्यूल तक जाके उसको वो मीन्स मेटाबॉलिज्म में ला सकते हैं। सो ये मेनली किस पे एक्ट करता है, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। ओके, स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। देन प्रमोट्स ग्लूकागोनोजेनेसिस, मीन्स ग्लूकागोन का जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसको ये प्रमोट करता है। कीप्स ब्लड शुगर लेवल स्टेबल बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लूकोज सो अवर बॉडी कैन यूज इट। ओके, ब्लड शुगर लेवल पे रखता है, क्योंकि अगर इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड का सब शुगर कैरी करके सेल को दे रहा है, तो ब्लड में शुगर नहीं रहेगा। तो एक ब्लड का भी शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा, ग्लूकागॉन एडिपोज टिश्यू एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज तैयार करेगा, और ग्लूकोज तैयार करके फिर से ब्लड में छोड़ेगा। और फिर में अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो फिर से इंसुलिन आएगा, इंसुलिन फिर वो जाके सेल्स को पहुंचाएगा। क्लियर इसका फंक्शन? ओके, तो यस। और अब एक शॉर्ट में बताऊंगी कि ये एक मिनट, फर्स्ट लेट दिस फिनिश डिसीजेस। ओके, यहाँ पे आप डायग्राम से समझ पाओगे, यू कैन सी दिस डायग्राम एंड कैन अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या सिक्रेट करेगा, ग्लूकागॉन विच इज सेकेंड हार्मोन। ओके, क्या करेगा, ये स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ओके, इसमें क्या करेगा, ये ग्लूकागॉन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ओके, और ये क्या पैंक्रिया, अगर ब्लड शुगर लेवल
बढ़ जाता है तो फिर अगेन क्या हो जाता है, यहाँ पे इंसुलिन सीक्रेट होता है, वो इंसुलिन क्या करेगा, यू कैन सी इट हियर, हाई ब्लड शुगर हो जाएगा। जब रेजेस ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर हो जाएगा तो फिर से पैनक्रियास एक्टिवेट हो जाएगा और क्या सीक्रेट करेगा, इंसुलिन सीक्रेट करेगा। इंसुलिन सीक्रेट करके फिर क्या हो जाएगा उसका, वो स्टिमुलेट करके उसको ब्लड से लेके टिश्यू तक लेके जाएगा। ओके, टिश्यू सेल तक लेके जाएगा। तो टिश्यू सेल से लेके जाओगे तो क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाएगा। मीन्स ये पूरा एक साइकिल है, उल्टा साइकिल, लाइक इन काइंड ऑफ 8। ये ऐसे है, पूरा ऐसे भी साइकिल नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। अगर डायग्राम आपको अच्छे तरह से समझ में आता है तो ये प्रॉपर से इसका मैकेनिज्म समझ पाओगे बस एक ही डायग्राम से। दिस इज पैनक्रियास, पैनक्रियास ग्लूकागॉन सीक्रेट करेगा, उससे क्या होगा, हो जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा शुगर मोलिक्यूल्स लाइक लीवर में जाके। ओके, तो ग्लूकोज मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ब्लड में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही हाई ब्लड शुगर हो जाएगा तो फिर पैनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन सीक्रेट करेगा। ये इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम द ब्लड, मींस ब्लड का ग्लूकोज लेगा और सेल्स को पहुंचाएगा, मींस टिश्यू सेल तक पहुंचाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, लोअर ब्लड शुगर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? टोटली अपोजिट उनका वर्क है। ओके, अब थोड़ा सा मैं इस पे बताना चाहूंगी कि ये पैनक्रियास और डायबिटीज एग्जैक्टली होता कैसे। इसके एक हमारे टोटली एक दो इसके रीजन है, एक डाइट एंड देन स्ट्रेस। एंड हाउ एग्जैक्टली स्ट्रेस मीन्स एक्ट्स ऑन बॉडी एंड उसका कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है। आप योगा के पूरे सेशन में या सारे स्पोर्ट्स के टाइम पे पूरा सर भी बताएंगे आपको एग्जैक्टली कैसे सारे सिस्टम्स पूरा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एंड देन सेकेंड डाइट पार्ट जो है, डाइट में कैसे होता है कि अगर आप खा लिया, बहुत सारा खा लिया, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन बार बार सीक्रेट होता है। आप एक छोटा सा पीनट भी खाओगे दाना, तो उसको पता नहीं कितनी क्वांटिटी में फूड आ रहा है, वो इतना सा खाओगे फिर भी वो इतना सीक्रेट करेगा। उसको बार बार सीक्रेट करके क्या हो जाते हैं, अल्फा बीटा सेल्स जो है ब्रस्ट होके पूरा खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप जब फिर से कभी खाना खा रहे हो उस टाइम पे ये उनकी शक्ति नहीं इनके पास कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेट कर पाए, तो फिर से प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं कि वो सिर्फ जहाँ पे टैबलेट पे काम चल रहा है इंसुलिन ये वो, वहां पे उनको इंजेक्शन पे मीन्स इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं ना वहां पे, क्योंकि बिल्कुल ही तैयार करना बंद कर दिया है। और पहले जो मेडिसिन टैबलेट पे रहते हैं उन लोगों को कैसे करते हैं कि ये सेल्स को एक्टिवेट करने के मेडिसिन रहते हैं। ओके, जब लोग डायबिटीज में टैबलेट के ऊपर रहते हैं ये सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है, और जब इंसुलिन पे आ जाते हैं तो ये पूरा एक्टिवेट कर करके इतना उनको काम दिया कि वो पूरा थक गए और मर चुके वो सेल्स। अब बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना एक्टिवेट होके वो काम करना बंद कर दिए, तब वो फिर इंसुलिन पे चढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारा डाइट अगर कंट्रोल पे है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स इन अ डे, देन ओनली इट विल वर्क प्रॉपरली। एंड सेकेंड इज स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो स्ट्रेस में यूजुअली क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फास्ट, नहीं तो वो उसका मेटाबॉलिज्म है ना पूरा चेंज हो जाता है। सो डायबिटीज में मेन कारण स्ट्रेस एंड देन ग्लूकागॉन है। आजकल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया और खाना भी बहुत बढ़ गया, तो डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया आजकल। सो बोथ वी हैव टू कंट्रोल। देन एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ पे है, वेर इट इज लोकेटेड on the kidneys, top of the kidneys, like its cap like structure. Again it is divided into cortex part and medulla part. Medulla यानी middle one, okay, middle one, and then cortex, that is outer coverage. Again it's medulla secretes other hormone and outer cortex secretes other hormone. Which are those we are going to see. There are 2 adrenal glands about 4 centimeter long and 3 centimeter thick. Okay, it's here, you can see it has 2 parts, outer cortex, okay, outer one cortex and middle one medulla. Okay, then medulla, middle part, which secretes 2 hormones. Which one, adrenaline or epinephrine. Okay, बहुत जगह पे ऐसे होता है कि कभी कभी एड्रेनालिन देती है और देते हैं, कभी कभी इपिनेफ्रिन देते हैं नाम, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये कौन सा हार्मोन आ गया, ये कहाँ से सीक्रेट होता था, ये कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। तो इट्स अ सेम नेम, मींस सेम है, बस उसका नाम अलग है। एड्रेनालिन कभी कभी बोला जाता है, कभी कभी इपिनेफ्रिन बोला जाता है। देन नॉर एड्रेनालिन,
नहीं तो उसको एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन बोला जाता है. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड, these are nothing but the same hormones. Okay, वो कैसे वर्क करते हैं, we'll see in next slide. Cortex part which secretes 3 hormones. कौन से टुगेदर इसको सब मिला के बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोइड्स, सॉरी एड्रिनोकॉर्टिकोइड्स. देन फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड्स. वो कैसे फंक्शन करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एड्रिनल ग्लैंड. ओके, यहाँ पे मिडल पार्ट जो है दैट इज मेडुला, मिडल वन मेडुला एंड आउटर वन इज कॉर्टेक्स. अलग अलग सेल्स रहते हैं इसमें भी, मेडुला में भी अलग अलग सेल्स रहते हैं, कॉर्टेक्स में भी अलग अलग सेल्स रहते हैं. अलग अलग सेल्स अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं. ओके, यू कैन सी इट हियर. विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन यहाँ पे they are released into blood because we are seeing endocrine only, so directly ये blood में release होते हैं. They are structurally very similar and have similar effect. दोनों almost same है, almost थोड़ा सा structure भी same है, function भी same है, लेकिन अलग अलग हार्मोन से. Together they potentiate by increasing heart rate. इसमें क्या हो जाता है, so मैंने जैसे कि बोला था फर्स्ट स्लाइड, हम जो एक चार्ट देख रहे थे, इससे रिलेटेड किससे है, ये स्ट्रेस से रिलेटेड है. ओके, जैसे कि आप किसी इस पे बैठे हो झूले में या रोलर कोस्टर में, तब आपका क्या हो जाएगा, या आप स्ट्रेस में हो या कोई आपके पीछे कुछ मीन्स लायन शेयर जो भी है आपके पीछे लगा है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आप स्ट्रेस में चले जाओगे. मीन्स क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली हियर, इंक्रीजेस हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट, डायलेटिंग द प्यूपिल्स. पूरा ऐसे हो जाता है ना आदमी. तो ये सब सारी चीजें कौन हैंडल करता है, एड्रेनालिन. तो हम स्ट्रेस में जैसे ही चले जाते हैं तो एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट हो जाते हैं और ये सारी चीजें करवाते हैं. ओके, तो अगर ये मीन्स इसलिए है ये वे वाले हार्मोन्स एक नेचुरल हमारा जो एक ये रहता है कि हमें मरने से बचना है. इट्स नेचुरल, क्योंकि हर एक इंसान जानवर सब में है कि हमें मरने से बचाना है. अगर ऐसे ही हमें उसका फियर नहीं होता, डेथ फियर नहीं होता हमें, तो कहाँ पे भी चलते चलते जाके मर जाते हैं हम, कुछ भी कर लेते, काट लेते. हमें डर है कट जाएगा, कुछ होगा, एक फियर है हमें. तो वो डर किसके लिए एक भगवान ने रखा है, या वो मैकेनिज्म इसलिए क्योंकि हम किसी इंजुरी से बचे, डेथ से बचे, इसलिए वो एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ये सारी चीजें करवाता है. लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में, इस लाइफ में क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस स्ट्रेस लेके ये हार्मोन्स 24 आवर्स सीक्रेट कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया बढ़ रहा है, रेज्ड मेटाबॉलिक रेट ये हो जाता है. फिर भी इट्स नॉर्मल पोजीशन में ये ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है तो फिर एक्स्ट्रा खा जाते हैं. जैसे स्ट्रेस में आदमी बहुत सारा खाता है, फिर मोटापा बढ़ जाता है, फिर अगेन डायबिटीज, दिस ऑल हैपेंस. देन नर्वसनेस हो जाते हैं, हेडेक बढ़ जाता है. ओके, so called is stress hormone. In normal अगर fear means flight mode जो बोलते हैं हम, उसके लिए बनाया है ये actually, but in daily life we are secreting 20 for the 24 hours. Then glucocorticoids. Okay, ये तीनों मिला के पूरे एक ही बोले जाते हैं, glucocorticoids. Cortisol कौन सा हार्मोन से, cortisterone and cortisone are the main glucocorticoids. Okay, cortisol is major one. अगर कहाँ पे भी मेंशन किया जाएगा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेंशन किया जाएगा, नहीं तो कॉर्टिसोल ओनली. ओके, इनका ज्यादातर इसका कभी नाम नहीं आता है अगर कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो या कुछ. ओके, कॉर्टिसोल इज द मेन एंड acts similar manner, so they mainly take the cortisol as a main hormone. Then cortisol deficiency अगर है leads to low blood sugar. ओके, इससे क्या होगा कि ब्लड शुगर लो हो जाएगा. दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस. ओके, ये स्ट्रेस लेवल को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है. दे आर हाई बिटवीन, कब रहते हैं ये, 4 AM to 8 AM तक ही इसका ज्यादा सिक्रेशन बॉडी में ज्यादा रहता है. देन लोवेस्ट बिटवीन मिडनाइट, सबसे ज्यादा कम रहता है कब, मिडनाइट एंड 3 AM पे. ओके, इफेक्ट इसका क्या हो जाता है एग्जैक्टली,
ग्लूकोनियोजेनेसिस में इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर, ओके, इसमें क्या हो जाता है, न्यू शुगर मोलिक्यूल्स फॉर्म हो जाता है। देन लाइपोलाइसिस, न्यू शुगर मोलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, कैसे हो जाएगा, एक तो डायरेक्ट शुगर के मोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में आने चाहिए बॉडी में, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर शुगर मोलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको लाइपोलाइसिस, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, लाइपो यानी फैट, लाइपोसक्शन, ओके, लाइपो यानी फैट, फैट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। सो मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, ओके, लाइपोलाइसिस, क्लियर। देन ब्रेकडाउन ऑफ triglycerides into fatty acids and glycerol for energy production. Then in pathology and pharmacology, exactly how it works, have a anti-inflammatory action. Anti-inflammatory means inflammation जहाँ पे हो जाता है उसको कम करता है, anti-inflammatory, inflammation कम कर देता है, suppresses the immune response, immune response suppress हो जाएगा, जैसे कि नाक में अगर पूरा एलर्जिक रिनाइटिस वगैरह हो जाता है तो नाक में थोड़ा सा सूजन बढ़ जाता है, तो ये क्या करेगा, मीन्स इम्यूनि सप्रेस द इम्यूनि रिस्पॉन्स, मीन्स यहाँ पे इम्यूनि सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, तो क्या मीन्स कैसे, वो जो इन्फ्लामेशन है उसको कम कर रहा है, ओके, मीन्स यहाँ पे इम्यूनि इसको रिस्पॉन्स को सप्रेस कर रहा है, ओके, सप्रेसेस द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू इंजुरी, डिले वुंड हीलिंग, ये सब ये करता है। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसको दूसरा नाम भी है एल्डोस्टेरोन, ओके, इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओके, एग्जैक्टली कैसे हम बोल सकते हैं, क्रेविंग पिकल मेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स, इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी, ओके, जैसे कि हमें अगर ज्यादा एक्सेस यूरिन पास हो रहा है तो हमें थर्स्ट ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से क्योंकि वाटर रिटेंशन करना है, ओके, जैसे कि क्रेविंग पिकल, पिकल खाने का मन क्यों करता है, क्योंकि सॉल्ट कम है अपनी बॉडी में या बाकी चीजें कम है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम ये सारी चीजें ब्लड यूरिन से पास आउट हो रहे हैं, तो हमें वो क्या हो रहा है, फिर से चाहिए अपने बॉडी को, तो क्या करेगा, पिकल क्रेविंग करेगा, क्योंकि वाटर बैलेंस करना है उसको, ये इसका काम है, वाटर पूरा बैलेंस करना या ये सारे मिनरल्स बैलेंस करना ब्लड में से, इसलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल को बैलेंस करता है, अगर एक्सेस यूरिन होके सारे मिनरल्स चले गए तो फिर अब मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए चाहिए, तो काइंड ऑफ पिकल क्रेविंग हो जाता है, या जैसे कि ऐसे खट्टे वाली चीज या नमकीन वाली चीज खाने का मन करता है, जैसे अगर आप देखोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो गया तो बोलते कि थोड़ा सा पापड़ खा लो या नींबू शरबत पी लो, सो वी हैव टू मेंटेन द मिनरल बैलेंस इन द ब्लड, सो दिस मेनली एक्ट्स ऑन द मिनरल बैलेंस। अगर ये एड्रेनल कॉर्टेक्स या दोनों इसमें से कोई भी कम ज्यादा हो गया, कॉर्टेक्स हो या मेडुला पार्ट हो और उसके अलग अलग हार्मोन्स हो, तो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट डिसऑर्डर देखेंगे कुशिंग सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओके, हाइपर सिक्रीशन, या अगर ज्यादा हार्मोन सिक्रेट हो गए तो ये कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। साइंस क्या है, पेन इन फेस, नेक, abdomen, pathological fracture, diminished protein synthesis, suppression of growth, hypertension, menstrual disturbance, peptic ulcer, ये सब हो जाता है। इसमें मेनली सबसे ज्यादा ये है कि स्वेलिंग आ जाती है बॉडी पे ऑल ओवर, ओके, दिस इज Cushing syndrome. Then Addison's disease, it is due to hyposecretion, ये कैसे था, हाइपर सिक्रेशन था, एक्स्ट्रा सिक्रेशन, और ये एडिसन डिसीज कैसे होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें से दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनरल एंड ग्लूकोज, इसका क्या हो जाता है, फिर हाइपोसिक्रेशन हुआ तो मेटाबॉलिज्म इन चीजों का, ग्लूकोज का और मिनरल का प्रॉपर से नहीं होगा, देन कॉज एंड यूजुअली कैसे होता है, कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून सिस्टम से भी बढ़ जाता है, जैसे ऑटो इम्यून सिस्टम कैसे है कि अपने ही बॉडी के सेल्स अपने ही अच्छे हेल्दी वाले सेल्स को मारने लगते हैं, इसकी वजह से भी ये कभी कभी शुरू मीन्स ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है। इफेक्ट, मसल वीकनेस, वोमिटिंग एंड डायरिया, टायर्डनेस, मेंटल कंफ्यूजन, लो ब्लड वॉल्यूम, हाइपोटेंशन, लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स इन वुमेन, ये सारा प्रॉब्लम्स या साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें। Then this is sixth gland, thymus gland. Okay, ये यूजुअली हम पहले जो मेन चार्ट
चार्ट था उसमें नहीं देखे थे, लेकिन दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड ग्लैंड। और एक्चुअली ना ये यहाँ पे देख सकते हो चाइल्डहुड में ओनली, आफ्टर एज ऑफ 14-15 के बाद धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है, बस बच्चों में रहता है ये टिल प्यूबरिटी। 14-15 ईयर्स तक ये बच्चों में रहता है। कहाँ पे रहता है? अबव द हार्ट एंड बिटवीन टू लंग्स। Okay, thymus is located in the anterior part of upper mediastinum. Mediastinum means कौन सा part है जहाँ पे heart located है? Mediastinum is middle part between two lungs. Okay, anterior and upper part में. Okay, at birth time, how much it weighs? About 10 to 12 ग्राम। ये 10 से 12 ग्राम का रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एडोलेसेंस या थोड़ा सा बड़ा होता है तो 20-30 ग्राम का हो जाता है, और जैसे जैसे पूरा आफ्टर 15 ईयर्स के बाद थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता चला जाएगा, और ओल्ड एज के टाइम पे 3 to 6 ग्राम का बच जाएगा। मीन्स अराउंड वो वैनिश हो जाता है, उसका बस एक थोड़ा सा ये बच जाता है। ओके, तो इसका मेन फंक्शन ये सबसे है कि इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द टी लिम्फोसाइट्स। एंड टी लिम्फोसाइट्स किसके लिए काम करते हैं? हमारी इम्यूनिटी के लिए। सो बच्चों में ना इम्यूनिटी इसके वजह से मेंटेन रहती है। ओके, ये थाइमस ग्लैंड की वजह से, क्योंकि ये मेंटेन्स एंड इनिशिएट्स टी लिम्फोसाइट्स, इसको क्रिएट करने में या प्रोड्यूस करने में ये काम करता है। सिक्रेट्स थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड सिक्रेट्स थाइमोसिन, ओके, हार्मोन which is required for the development of T lymphocytes for cell mediated immunity। सेल mediated जो इम्यूनिटी रहती है उससे बनी रहती है। ओके, एंड आफ्टर 14-15 ईयर्स ये धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। सो अडल्ट्स में ये हमें देखने को नहीं मिलता है, चिल्ड्रंस में रहती है। इसलिए चिल्ड्रंस का थोड़ा सा इम्यूनिटी हमसे भी थोड़ा सा अच्छा रहता है, एक 3-4 साल तक उनका वीक रहता है, फिर भी हमसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि कोरोना का अफेक्ट आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में हुआ था और चिल्ड्रन में नहीं हुआ था। चिल्ड्रन का अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, हम फिर भी उनको कोरोना से बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी ना कभी पहुंच ही जाता होगा, फिर भी वो अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस जो अपना थाइमस ग्लैंड की वजह से थाइमोसिन एंड दिस सिगरेट्स और डेवलपमेंट क्या करता है टी लिम्फोसाइट, सो ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। एक 3 से 4 साल तक थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि अभी वो सब अडॉप्ट कर रहा है बच्चा, उसके बाद थोड़ा सा उसका रहता है नॉर्मल। एंड दिस इज पीनियल ग्लैंड, सेवेंथ वन। और पीनियल ग्लैंड के बारे में ज्यादा आपको कहाँ पे भी जानकारी नहीं मिलेगी, इतना सही बस इसका है कि कहाँ पे रहता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये उसके पीछे अपर साइड बिटवीन द मिड ब्रेन, सॉरी इनसाइड द मिड ब्रेन, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड दिखाई देगा आपको। एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे ऊपर के साइड पे ये पीनियल ग्लैंड रहता है। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल वन। ओके, कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, ये ब्रेन में रहते हैं। कहाँ पे? टारगेट एरिया उसका। ये मेनली क्या करते हैं? रेगुलेट टाइमिंग ऑफ प्यूबरिटी एंड इन्फ्लुएंस मूड। ओके, दोनों यही है। इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है, या इसको ओके हैप्पी हार्मोन से भी ये रिलेटेड है। melatonin and serotonin. Melanin is different, melatonin is different. Melanin, which secretes on the skin surface, which does the function of darkening of the skin, and melatonin is different. Don't get confused with this. Okay? Yes, please be aware about it. Melanin and melatonin. Okay. Yes. Okay. And for the pineal gland, we consider it as third eye. Okay. And जो भी मेडिटेशन करते हैं या चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, दिस इज ऑल्सो वी हैव टू एक्टिवेट दिस ऑल्सो। सो जैसे कि मैंने कल बताया था कि योगा एंड चक्रा का कोरिलेशन है, वो हम इस लेवल पे नहीं, और बहुत उसको डिटेल और पूरा प्रॉपर से बस चक्रास लेके उसको कंसीडर करना होता है। सो जो थर्ड आई जब बोलेंगे तो ये पिनियन ग्लैंड से रिलेटेड होगा, लोकेटेड इन द ब्रेन। मेलाटोनिन क्या है? प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग डार्क आवर्स। ओके, सीजनैलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ इन मेल एंड फीमेल। ओके, मोर पोटेंट इन फीमेल, फीमेल में ज्यादा रहता है। लॉन्ग ड्यूरेशन सिक्रेशन स्टिमुलेटरी, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो रहते हैं इनहिबिटरी वाले हार्मोन से करते हैं। Okay, we have done. If any questions you can ask, and first just stop the recording, I think. Congrats.
gonads. No, that comes in reproductive system na. But it is one of the hormones, na? Gonads have testosterone and progesterone. त्याला ना पूर्ण मग एक पूर्ण सेशन पाहिजे, असं 5 मिनिटात नाही संपत ते. Okay, ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये ब्रेन मध्ये फक्त 2च हार्मोन सिक्रेट होतात. नो सर, पिट्युटरी ग्लँड आहे ना, पिट्युटरी ग्लँड मध्ये तर टोटल 8 हार्मोन्स आहेत आणि हे पिनियल ग्लँडचे हे 2. ओके. So many hormones. Okay, again we will see the first chart. Look here. हे मस्त बनवलं चार्ट. This is, बंद करू का? सॉरी. yes, yes.